السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. سب مل کر جس طرح سے میں پڑھاؤں محبت کے ساتھ پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. البرکات ملک محمد اسلام انگلش اسکول کے اس اینول ڈے سیلیبریشنز کے موقع پر یہاں آنے والے تمام حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات، پیرنٹس، والدین، سرپرست، بچے، ٹیچرز اور جتنے بھی ہمارے ڈگنیٹریز ہیں ان سب کا میں استقبال کرتا ہوں اور آپ کو خیر مقدم کہتا ہوں. ویسے تو ہمارے بچے آپ کا استقبال پہلے سے ہی کر چکے ہیں، لیکن اب ان بچوں کی محنتوں کے بعد ان کی سراہنا کا وقت ہے، ان کی حوصلہ افزائی کا وقت ہے، ان کو ہمت دینے کا وقت ہے، ان کی تعریف و توصیف کا وقت ہے. اور اس کے لیے ہمارے درمیان انٹرنیشنل لیول کی شخصیات بھی ہیں، نیشنل لیول کی شخصیات بھی ہیں. ہمارے درمیان ہمارے ٹرسٹیان بھی موجود ہیں، ہمارے ذمہ داران بھی موجود ہیں. اور مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ ہمارے درمیان عالمی شہرت کے مالک رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دعوت کو پوری دنیا میں اپنی پرسوز آواز کے ذریعے سے، اپنے انداز کے ذریعے سے تحریک سنی دعوت اسلامی کے پرچم تلے پہنچانے والے حضرت امیر سنی دعوت اسلامی حضرت مولانا حافظ قاری محمد شاکر صاحب قبلہ نوری ہمارے مہمان خصوصی کی حیثیت سے ہمارے درمیان جلوہ افروز ہیں. میں البرکات ملک محمد اسلام انگلش اسکول کے عزت مآب ٹرسٹی جناب نواب ملک صاحب اور ہمارے مینیجنگ ٹرسٹی جناب سہیل کنڈوانی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت کو اپنے ساتھ لے کر اسٹیج پر تشریف لائیں اور ہم سب حضرت کے چہرے مبارک کی زیارت کرنا چاہیں گے. ان حضرات کی تشریف آوری کے بعد ہماری محترم چیئرمین محترمہ سیدہ ملک صاحبہ اور محترمہ زبیدہ کنڈوانی صاحبہ جو البرکات کی ٹرسٹی ہیں، میں ان دونوں محترم خواتین سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی تشریف لائیں. البرکات ملک محمد اسلام انگلش اسکول کی پرنسپل محترمہ شمینہ شیخ صاحبہ سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ بھی یہاں ساتھ میں تشریف رکھیں. ہمارے ایک اور ٹرسٹی جناب ولی اللہ خان صاحب جو سیکریٹری بھی ہیں البرکات سے، کہ ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. ان کے بعد جناب حضرت کپتان ملک صاحب، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. جناب کپتان ملک صاحب بھی البرکات کے ٹرسٹیان میں سے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ البرکات ملک محمد اسلام اسکول کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر دنیاوی تعلیم دینی تعلیم کے ساتھ دی جاتی ہے، اور بچے جہاں پر اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھ رہے تھے، یا طیبہ کی رٹ لگا رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کا ذکر کر رہے تھے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آج کے اس گلوریس فنکشن کا تھیم آپ نے دیکھا ہوگا، وہ تھا گلوبل وارمنگ. گلوبل وارمنگ کے تھیم پر بچوں نے مختلف سکٹس بھی پیش کیے، ڈرامے پیش کیے،
नज़में पेश की, पोएम्स पेश की, और इन सब के पीछे हमारे पूरे स्टाफ की मेहनतों का जो समरा रहा है वो आपकी निगाहों के सामने रहा है। मैं इन तमाम स्टाफ मेंबरान की खिदमत में आप सब की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ, और इनसे मैं उम्मीद रखूँगा कि आइंदा इससे भी बेहतर ज़्यादा परफॉर्मेंस करके वो अपनी इस पैगाम को दीन और दुनिया के दोनों के एक हसीन संगम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इस कार खैर में हमारे दरमियान हमारे कुछ उलमाए किराम की भी काविशें हैं। आप जानते हैं कि हमने यहाँ पर मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस में आपके सामने परफॉर्मेंसेस पेश किए हैं। उसमें इंग्लिश रही है जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, उर्दू है, अरबी है। शुरू में जब बच्चों ने गुफ्तगू की तो आपका इस्तकबाल किया था अरबी में, इंग्लिश में और मराठी में। यहाँ जो लैंग्वेजेस हम सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसके पीछे एक मकसद है। वो मकसद ये है कि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो इंटरनेशनल लेवल पर जब हमारे बच्चे परफॉर्म करेंगे या बात करेंगे, जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो उनके अंदर इंग्लिश की फ्लुएंसी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के ज़रिए से चुना की हैसियत से चुना गया था। और एक बात आपने महसूस की होगी कि लास्ट में जब बच्चों ने हिंदी में या उर्दू में परफॉर्म किया, ड्रामा किया, तो आपका रिस्पॉन्स कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा था बनिस्बत शुरू के जो ड्रामे थे वो इंग्लिश लैंग्वेज में थे। उस वक्त आपका वो जो रिस्पांस मैं महसूस कर रहा था कि शायद हमारे पेरेंट्स उस गुफ्तगू को समझने में कुछ कमी महसूस कर रहे थे, इसलिए शायद उनका रिस्पांस वैसा नहीं नज़र आ रहा था जैसा कि हम उम्मीद कर रहे थे। इससे एक बात समझ में आ रही है कि आज इंग्लिश को सीखना हमारे लिए कितना ज़रूरी हो गया है कि अगर घर में भी माँ बाप को इंग्लिश नहीं आती तो उसका भी असर बच्चों के प्रोग्रेस पर होता है। और इसके लिए हम सब मिलकर इस कोशिश को जारी रखने की कोशिश करें कि हम जहां अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रहे हैं वहीं खुद हम भी इंग्लिश लैंग्वेज को जानने की कोशिश करें, ताकि इन बच्चों को आगे बढ़ाने में हमारा ताउन भी शामिल हाल हो सके और हम अपने बच्चों की सराहना कर सकें, हम अपने बच्चों की हौसला अफजाई कर सकें, हम अपने बच्चों को आगे बढ़ने का हौसला दे सकें। इस तरीके से इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, हमारी राष्ट्रभाषा है, मराठी हमारी स्टेट की लैंग्वेज है, राज्य भाषा है। यहाँ जिस महाराष्ट्र स्टेट में हम रहते हैं उस मुताबिक हम मराठी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये तो दुनिया की लैंग्वेजेस हुई हैं, लेकिन अलबरकात ने एक एहतमाम ये भी किया है कि आखिरत की लैंग्वेज जिसका सही इस्तेमाल हमें कब्र में मालूम होगा और हश्र में मालूम होगा, इसलिए कि कब्र में हमसे सवालात न इंग्लिश में किए जाएंगे, न उर्दू में किए जाएंगे, न मराठी में किए जाएंगे, न हिंदी में किए जाएंगे, बल्कि वो सवालात हमसे अरबी में किए जाएंगे। और हश्र में भी जो बातचीत होगी, गुफ्तगू होगी, वो अरबी में होगी। इसलिए लैंग्वेज ऑफ द हियर आफ्टर, इसमें भी हमारे बच्चों ने जिस तरीके से आपका वेलकम किया था, शायद आपको उसको सुनकर मसरत यकीनन हुई होगी। और उसके पीछे जिन हजरात की काविशें रही हैं, हमारे यहाँ पर हमारे मैनेजमेंट ने बड़ा पुरतपाक एहतमाम किया है कि यहाँ पर अरबिक लैंग्वेज डेवलपमेंट कमेटी को यहाँ पर तश्कील दिया है। और उस कमेटी में अरबी मुंबई यूनिवर्सिटी के अरबी के एक्सपर्ट हजरात के साथ साथ हमारे दो उलमाए किराम भी मौजूद हैं। उनमें मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब क़िबला मिसबाही हमारे दरमियान मौजूद हैं, और हज़रत मौलाना कमालुद्दीन साहब क़िबला जो हमारे हाशमिया हाई स्कूल में टीचर भी रह चुके हैं और मदनपुरा नाइट स्कूल के प्रिंसिपल भी रह चुके हैं। मैं इन दोनों हजरात से गुजारिश करता हूँ कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। साथ ही साथ हमारे दरमियान समाज की मौजूद शख्सियात में से एक ऐसी शख्सियत आज मौजूद है जो बिल्कुल कम गो खामोश, लेकिन अपनी सादगी और अपनी इंकिसारी के बावजूद एक ऐसे अजीम ओहदे पर वो फायज रहे हैं कि आप उनको देखेंगे तो शायद अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये शख्स इतने बड़े ओहदे पर फायज हो सकता है। मेरी मुराद हमारे करम फरमा जनाब मोहम्मद अयूब वागू साहब से है, जो डॉकयार्ड रोड दरगाह मस्जिद के ट्रस्टी हैं और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के रिटायर्ड ऑफिसर हैं। अपने ज़माने में उन्होंने रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में जो खिदमत दी हैं उसके बाद वो रिटायर हुए हैं और उसके बाद अब वो दीन मतीन की खिदमत कर रहे हैं। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि वो तशरीफ़ लाएँ और एक नमूना लोगों के सामने पेश हो कि ऐसा शख्स जिसने रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर की पोस्ट पर काम किया है, आज वो चेहरे पर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को सजाए हुए और इन बच्चों के सामने अंग्रेज़ी का भी एक्सपर्ट है, मराठी का भी एक्सपर्ट है, उर्दू का भी एक्सपर्ट है, अरबी भी अच्छी खासी जान लेते हैं और हिसाब में तो ये इनका कोई हिसाब नहीं है। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम जनाब इकबाल मलिक साहब से, जो हमारे
जनाब नवाब मलिक साहब के भाई हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो भी स्टेज पर तशरीफ लाएं। अलबरकात मलिक मोहम्मद इस्लाम इंग्लिश स्कूल की इस इमारत के साथ साथ एकेडमिक्स को देखने के सिलसिले में एक कमेटी का गठन हुआ, जो एजुकेशन कमेटी के तौर पर आज यहां पर काम कर रही है। एजुकेशन कमेटी में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ एक ऐसी हस्ती का साथ हमें मिला है जिनकी पूरी जिंदगी एजुकेशन में गुजरी है, जिनकी पूरी जिंदगी इल्म और तदरीस और दर्स व तदरीस में गुजरी है। न जाने कितने डॉक्टर इनके सिर्फ हाथ की कीमिया के टच ने पैदा किए हैं और कितने प्रोफेसर आज लोगों को इल्म की ज़िंदगी देते नज़र आते हैं। मेरी मुराद महाराष्ट्र कॉलेज के सेक्रेटरी जनाब प्रोफेसर हाजी कलानिया साहब से है। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं स्टेज पर और हमारी हौसला अफजाई फरमाएं। हमारे हाजरीन में और भी मौजूद शख्सियात मौजूद हैं, जिनमें एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट टाटा पावर मिस्टर अशोक शेट्टी साहब, मिस्टर प्रदीप मांजरेकर साहब जो जनरल मैनेजर टाटा पावर के, और मिस्टर एस.एच. दलवी साहब जो हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट टाटा पावर। वो तीनों हजरात यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे, लेकिन अपनी मसरूफियात की वजह से अब वो यहाँ से तशरीफ़ ले गए हैं, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में भी हम उनका इस्तकबाल उन तक पहुँचाने के लिए यहाँ उनका तस्करा कर रहे हैं। और आज एक शख्सियत हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद नहीं है, वो हॉस्पिटल में है। हमारे अलबरकात मलिक मोहम्मद इस्लाम इंग्लिश स्कूल के ऑनररी एडमिनिस्ट्रेटर जनाब मोहम्मद हुसैन सही बोले साहब, आप उन सब के लिए दुआ करें, उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जल्द अज जल्द सेहत कामिल आजिला नसीब फरमाए और वो वापस हमारे स्कूल में आकर के अपनी खिदमत को अंजाम देने के काबिल बन जाएं। इन तमाम शख्सियात की खिदमत में अब हम गुलहाए अक़ीदत पेश करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारी अजीम हस्ती, हमारे कायद, हमारे रहनुमा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शाकिर साहब क़िबला नूरी अमीर सुन्नी दावत इस्लामी की खिदमत में फूलों का नजराना और हदिया पेश करने के लिए हम हमारे मुअज़्ज़ज़ ट्रस्टी जनाब नवाब मलिक साहब से गुजारिश करते हैं कि वह हज़रत अमीर सुन्नी दावत इस्लामी की खिदमत में फूलों का तोहफ़ा पेश करें। हज़रत अमीर सुन्नी दावत इस्लामी के बाद अब मज़ीद वक्त आपका लिए बगैर मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मुअज़्ज़ज़ ट्रस्टी, हमारे एमएलए, हमारे रहनुमा, हमारे दूरबीन रहनुमा जो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में लेबर मिनिस्टर के ओहदे पर भी फायज़ रह चुके हैं, जो मेहनत की अज़मत को जानते हैं, जो मासूम को मोटिवेट करने का फ़न जानते हैं, लोगों के दिलों में उतरने का हुनर जानते हैं, इमारतें ही नहीं बल्कि दिलों को तामीर करने की ताकत अपने अल्फाज के अंदर रखते हैं। जब वो अपने अल्फाज का वज़न किसी पल्ले में डाल देते हैं तो वो पल्ला भारी होकर अलबरकात जैसी शक्ल इख्तियार कर लेता है और एक बंजर ज़मीन इल्म की शाहराह बन जाती है, एक गुलिस्तान बन जाता है, लहलाता व चमन बन जाता है, जहाँ आप पलने वाले बच्चे, जहाँ पढ़ने वाले बच्चे फिर ग्लोबल वार्मिंग का थीम लेकर के हमें ज़िंदगी की ठंडक और राहत पहुंचाते नज़र आते हैं और उस साथ साथ न सिर्फ उसकी कीमियाई असरात के ताल्लुक से बताते हैं बल्कि उसके रूहानी असरात के ताल्लुक से भी हमें आगाह करते हुए नज़र आते हैं। वो हमारे मोहतरम रहनुमा जनाब नवाब मलिक साहब अब तशरीफ़ लाते हैं और अपना पैगाम मोहब्बत आपके सामने रखते हैं।